کل کی دوبارہ جو ہے وہ ڈیٹ ملی ہے. ہماری یہ امید بھی ہے اور مؤدبانہ گزارش بھی ہے عدالت عالیہ کے معزز جج صاحبان سے کہ پہلے ہی جو ان کو کوئی 20-22 دن کا ریلیف ملا ہے، انہوں نے 20-22 دنوں میں 100 ارب روزانہ کی رفتار سے جو ہے وہ کرپشن کی ہے، اور لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ حکومت سے لے کے یہاں اسمبلی تک گرم ہے. 5 کروڑ روپے میں یونیورسٹی بک رہی ہے. 5 کروڑ روپے آپ دیں اور بھلے آپ کے پاس جو ہے وہ 5 مرلے جگہ ہو، یہاں اسمبلی سے جو ہے وہ یونیورسٹی کا بل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا اور ایکٹ بن جائے گا. یہاں پہ جو فرنٹ مین ان کا عنایت لکھ نامی بندہ بیٹھا ہے، وہ بندہ کروڑوں روپے جو ہے وہ کما رہا ہے خود بھی اور آگے بھی پہنچا رہا ہے. اسی طرح سے آٹے کی شارٹیج تو دور نہیں کر سکی حکومت ان 20-22 دنوں میں کہ غریب آدمی کو جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے آٹا ملے، لیکن ماسٹر پلان جو ہے وہ انہوں نے پاس کر دیا اور اس میں اربوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کیا. اور اس کرپشن میں عمران خان ذاتی طور پہ بھی شامل ہے. عمران خان نے ڈی جی ایل ڈی اے کو بلا کے ایک پراپرٹی ٹائکون، ایک بڑا پراپرٹی گروپ، ان کا کوئی تقریباً جو ہے وہ 20,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ براؤن کروایا ہے یہ کالا شاہ کاکو والی سائٹ پہ، اور یہ خود کروایا اس نے. اس سے پہلے بھی اسے 50 ارب روپے کا فائدہ دیا، اور القادر جو ٹرسٹ ہے اس کے نام پہ 5 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے اور اپنی اہلیہ محترمہ کے نام جو ہے وہ لگوائی. اس میں سے کچھ پراپرٹی بنی گالہ میں فرا گوگی کے نام بھی ہے. تو یہ کرپشن جو ہے یہ 20-22 دنوں میں اتنی رفتار سے ہوئی ہے، اتنی رفتار سے ہوئی ہے کہ کوئی اس میں پیچھے نہیں ہے. یعنی لوٹ مچی ہوئی ہے یہاں پنجاب میں. اور اینٹی کرپشن میں وہ ایک سفید داڑھی والا جو بندہ بیٹھا ہے، انتہائی وہ بے غیرت شخص ہے. اس نے وہاں پہ جو ہے وہ لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، جائیں جا کے پیسے دیں اور جو مرضی جو ہے وہ کام جو ہے وہ کروا لیں. اور ویسے ہی وہ ڈی جی جو ہے وہ بھی روز شام کو جو ہے وہ اپنا روکڑ ملا کے حساب کر کے جاتا ہے. تو اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے اس میں ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے عوام پر بھاری گزر رہا ہے. اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے عدالت عالیہ سے کہ وہ اس کا جلد فیصلہ کریں اور ان کو مزید مہلت نہ دیں. یہ مائنارٹی گورنمنٹ ہے، یہ داؤ لگانا چاہتے تھے پچھلے 2 دن بھی، اور آج پھر ان کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی بندے مندے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے تو یہ کہیں کہ جی ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے. حالانکہ ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے. ان کے تقریباً 6-7 بندے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کب انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا، کس ایئرپورٹ سے کیا اور کس ٹکٹ نمبر پہ وہ جو ہے وہ گئے ہیں. ہمارے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے. اب اس کے باوجود اگر یہ یہاں پہ جو ہے وہ 175 بندے اکٹھے کر کے 186 کا ڈرامہ کریں گے تو یہ ان کا ایک اور فراڈ ہوگا، تاکہ یہ اپنے فراڈ کو، اپنی کرپشن کو اور 20-22 دن یا 15 دن جتنا بھی چلا سکیں یہ چلائیں. مونس علائی صاحب جو ہے وہ سارے جو پیسے تھے وہ اکٹھے کر کے لے گئے ہیں باہر اسپیشل جو ہے وہ جہاز میں، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ تو شاید واپس نہ ہی آئیں. لیکن یہ باقی جو ہے، باقیوں کا بھی ارادہ یہی ہے کہ جو اکٹھا ہوتا ہے وہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ لے جائیں. لیکن میں اس بے شرم انسان سے پوچھتا ہوں، اس فتنے سے میں پوچھتا ہوں کہ تم جو راگ الاپ رہے ہو 5 سال سے، چور ڈاکو کرپشن، یہ تم جو کر رہے ہو اس وقت، جو تمہاری نگرانی میں یہ تمہاری پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، کے پی کے میں بھی حال برا ہے، یہ سارا کیا ہے؟
तुम क्या कौम को जवाबदेह नहीं हो? क्या तुम समझते हो कि कौम जो है वो जानती नहीं है, कौम को मालूम नहीं है कि किस तरह से तुमने जो है वो करप्शन का जो है वो बाज़ार गर्म किया हुआ है? हमें ये मालूम है कि इनके पास नंबर नहीं है, इन्होंने 2 दिन दाव लगाने की कोशिश की, नहीं लगा। आज दोबारा जो है इन्होंने कोशिश करने का इनका इरादा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनको इस कोशिश में जो है वो हम कामयाब नहीं। इसमें मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा, देखिए अभी फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि हम 177 हैं और 10 लोग काफ लीग के आ रहे हैं। मोमना वहीद नहीं है यहाँ पे, एक इनका डेरा गाजी खान से मेंबर है, जवेद अख्तर लुंड वो लाहौर नहीं है, हाफिज़ अमार यासिर जो है वो चकवाल में है। देखिए इस तरह ना करें, अगर आपका ख्याल है ना कि आप झूठ बोल के यहाँ पे आप एक ड्रामा शुरू कर देंगे कि हमारे नंबर पूरे हैं, और डिप्टी स्पीकर सूरी ने जो नेशनल असेंबली में किया था वही काम आप यहाँ करेंगे कि दरवाजे बंद कर देंगे और कहेंगे कि हमारी 186 की गिनती पूरी है, ये नहीं होगा। हमें पता है आपका एक सरगोदा का मेंबर यहाँ पे नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, आपका एक खानेवाल का मेंबर यहाँ पे नहीं है। आप पता करवाएं ना कि आपके ये 8-10 मेंबर जो परवेज़ इलाही साहब से नाला हैं और यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये धक्काशाही और धांधली करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि दरवाजे बंद करके आप क्लेम कर लें। इनके 12 मेंबर इस वक्त नहीं है, काफ लीग के अगर 10 आ भी जाएं, बासिमा चौधरी साहिबा मुल्क में है ही नहीं, वो अमेरिका में है। आप मैंने अब FI से लिस्ट ली है, जब खुरम लगारी मुल्क में नहीं है, बासिमा चौधरी मुल्क में नहीं है, ये बाकी 6-7 नाम मैं ले रहा हूँ कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये झूठ बोल के कि हमारी गिनती 177 है और 10 काफ लीग के आ रहे हैं, तो ये कोई उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है, जो बैरून मुल्क है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है। तो ये अगर आज 186 की गिनती पूरी करने की कोशिश की गई तो हम टेक्निकल डेटा के साथ, मैं वज़ीर दाखिला की इजाज़त के साथ ये कहता हूँ कि हमारे पास FIA का डेटा और उसके अलावा लोकेशनें भी हमारे पास हो जाती होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके तहत बंदे की लोकेशन पता लग जाती है, ये टेक्निकल काम है। अगर ये मामला आपने किया तो हम जियो फेंसिंग करा के आपको ऐसा शर्मिंदा करेंगे कि आपको फवाद चौधरी साहब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वो जो फवाद चौधरी साहब ने कल इल्ज़ाम लगाया है कि 1.2 अरब रुपए आपने इमरान असम्बली को देकर ख़रीदा है, कभी मोमना वहीद पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किस पर। अगर हमने ख़रीदा है तो फिर आज उनके 177 कैसे हैं यहाँ? बात यह है कि ये झूठे लोग हैं, इनका काम है कि झूठ बोलो, प्रोपेगेंडा करो और इस तरह से जो है एक बयानिया बनाओ। राणा साहब ये फरमा दीजिएगा जी, उस बारे में मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करनी चाहूँगा, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करनी चाहूँगा, इत्तेहादी हुकूमत को और उनकी पूरी टीम को। ये पिछले यानी 7-8 माह में ये पहली मरतबा है कि वो इकॉनमी जिसका भट्ठा इमरान खान नियाज़ी और उसकी टीम ने बिठाया था, ये पहली दफ़ा ये उम्मीद जो है वो सामने आई है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जो है वो बाहर निकल आएंगे। राणा साहब ये फरमा दीजिएगा, यही लाहौर हाई कोर्ट थी, कबूल होगा जी जो भी जिस साइड पे भी आता है। राणा साहब इसके साथ ही ऐड कर लें, फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, और इस तरह की जो अफवाहें जो है वो क्यास हराइयाँ हो रही हैं, हालांकि हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक बहुत करीबी अजीज़ जो है वो इस कैबिनेट का मेंबर है जो कैबिनेट डिज़ोल्व हुई है, तो इसलिए लोग क्या सराइयाँ जो है वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे तो उनसे ये उम्मीद है कि वो भी इन क्या सराइयों को जो है वो ख़त्म करवाएंगे और ये बहुत ही इंसाफ पे मबनी, आइन और कानून पे मबनी जो है ये फैसला होगा। राणा साहब ये फरमा दीजिए, राणा साहब शॉर्टली बता दीजिएगा, जैसे आपने बताया कि 7 से 8 मेंबर्स यहाँ पर नहीं है, साहब बता रहे हैं, इस सूरत हाल से रुकने के लिए मुस्लिम लीग नून ने आज ईवान के अंदर क्या लाहे अमल अपनाया? देखें, लाहे अमल ये है कि एक तो हम मीडिया के सामने आपको बता रहे हैं, आप मीडिया का ये काम है कि लोगों को सच बताए, सच दिखाए, तो जो हम बात कर रहे हैं वो आपके सामने हमने रखी है, इसको हम साबित करेंगे। राणा साहब टेक्निकल डेटा से साबित करेंगे। वो जो कह रहा है कि 177 हैं,
तो वो आपको आज अलाउ करें जब उन्होंने काउंट करवाना है तो 170 के राणा साहब ये फरमा दीजिएगा, राणा साहब ये फरमा दीजिएगा, एक मिनट हसन साहब, राणा साहब ये फरमा दीजिएगा, ये लाहौर हाई कोर्ट थी और आज भी यही लाहौर हाई कोर्ट है। तब हमजा शहबाज शरीफ का केस था तो उस वक्त ट्रस्टी वजीर आला का नाम दे दिया गया, आज इनको पहले 17 से 20 दिन दे दिए गए, अब आगे भी वक्त दिए जाने का चांस है, इस पर क्या कहेंगे? क्या दोहरा मेयार नहीं है लाहौर हाई कोर्ट पर? किया है अदलिया के एहतराम और उनकी इज़्ज़त को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए हम इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये मोदबाना सबमिशन की है कि वो इस किस्म की चीज़ों जो है वो आगे बढ़ें और इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म करवाएं और कल जो है ये फैसला होना चाहिए और ये करप्शन की दौड़ जो लगी हुई है ये ख़त्म होनी चाहिए। सानिया वज़ीराबाद से हवाले से GIT की 4 इख्तिलाफी नोट पर मुश्किल सामने आया और ये इंतहाई अहम इशू था। 4 जो GIT के मेंबरान थे उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा और ये कहा कि एक के अलावा हमें और कोई मुल्ज़म नहीं देखने को मिला, तमाम तार एविडेंस भी देखे। तो इस पर आपकी क्या राय, इसको दुरुस्त समझा जाएगा? देखिए वज़ीराबाद का जो वाक़या है इस हद तक दुरुस्त है कि नवीद बशीर नामी आदमी जो रिलीजियसली मोटिवेटेड था और सेल्फ मोटिवेटेड था, उसने वहाँ पे जो है वो फायरिंग की है और उसके नतीजे में जो भी लोग ज़ख्मी हुए वो दुरुस्त है। कंटेनर से एक फायर हुआ है और वो मौज़म को लगा जिससे मौज़म जो है वो हलाक हुआ है और नवीद बशीर को मौके पे अरेस्ट कर दिया गया। ये तो वाक़या है, यहाँ तक तो हकीकत है। बाकी उसके अलावा ये उस मामले को एक ऐसे केस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, 2 और मुल्ज़म शामिल कर रहे हैं ताकि ना वो मिले ना बात ख़त्म और ये इनका प्रोपेगेंडा। ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो GIT की रिपोर्ट गुलाम मोहम्मद डोगर ने पेश की वो बिल्कुल जो है वो PTI की फरमाइश पे थी और वो गलत थी। अब तो 4-1 की रिपोर्ट होगी। जो वो 4-1 की रिपोर्ट, चार लोगों ने जो है उन्होंने हक़ाइक़ के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी। 15 से 10 दिन का मोहलत मांगी जा रही है जमात के वोट के लिए, तो अगर आप कहते हैं कि एक दिन भारी है करप्शन पे, तो उसके बाद आपको क्या लाएमल होगा अगर अदालत 15 दिन का टाइम दे देती है? जी मैंने तो इससे पहले जो सारी बात की है और सारे हक़ाइक़ सामने रखे हैं, हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी अदालत आलिया से कि वो इस अरसे को कम से कम करे, क्योंकि अदम एतमाद का वोट लेंगे 22 दिन तो पहले मिल चुके हैं, हम 10-15। राणा साहब ये बताइएगा, राणा साहब पीटीआई के लोगों ने कहा है, पीटीआई के लोग ये दावा कर रहे हैं कि राणा साहब जिस दावे से जितने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं, तो क्या ये आपकी अपनी कोशिश है या जो कोशिशें करने वाले हैं उनकी उनकी वजह से है? ये हमारी अपनी कोशिश। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा, मसलाई जो है फेडरल गवर्नमेंट ये समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ से गया है, तो जाहिर है सिस्टम तो फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो ब्रीच हुआ है, तो इस हवाले से क्या? आज 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं उसके फ्रंट में, बताएं आपके सामने। नवाज भट्टी है, मजहर है। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा, और बात ये है कि वो सायरा अनवर अभी तक पेश नहीं हो रही। राणा साहब ये बताइएगा, कानून से मुबारक पेश सबको होना पड़ेगा, जवाब देना होगा। इसमें अरबों रुपए की करप्शन है, आपकी FIA को फेस करें, जवाब दें। राणा साहब ये बताइएगा, राणा साहब ये बताइएगा जिन कर लिया गया था, क्या इतलात आपके पास है, किसने वो रहा कि किसने उठाया? और साथ साथ ही वीडियोस के बारे में कहा जा रहा है कि चंद रहनुमाओं की वीडियोस जो है वो गंदी वीडियोस है, वो वीडियो गंदी ही नहीं है। बहरहाल वीडियो जो है वो गंदे लोगों की फिर गंदी होती है, लेकिन मामला ये है कि इस उम्र में भी आके अगर बंदा बाज ना आए तो फिर जो है वो उसकी अच्छी वीडियो भी जो है ना वो। लेकिन आपने तस्दीक कर लेना कि वही है, वो कब आएगी सर? आपकी तो तस्दीक है ना कि वही है गंदा बच्चा। चौधरी साहब मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है, ये लोग जो गए हैं ये लोग वाकई जो है वो सिस्टम उस वक्त तक अलर्ट नहीं था। ये 1-2 आदमी जो निकले हैं, अब सिस्टम अलर्ट है, इंशाल्लाह ताला कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। ओ हकीम मैनू लै दो, ओ हकीम